ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਟਿੱਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ, ਕੁੰਡਲੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਬਲ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋ ਮੈਨਸ ਲੈਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸੀਮੈਂਟਡ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, JBC ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘਿਆ, ਉਦੋਂ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬੈਰੀਗੇਡ ਜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬੀਮ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਬਜਰੀ ਵਾਂਗੂ ਭਰਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਆ, ਹੱਦ ਦਾ ਟੱਪ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਚੀਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਜਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇੰਨੀ अच्छा भाई जी, ये भी गल है, कहते कि एम्बुलेंस भी लंघण देंदे इत्थों। भाई एम्बुलेंस इधर को नहीं लिखने देंगे। एक एम्बुलेंस आई थी, उसके अंदर मरीज था, अगर वो मर गया तो जिम्मेदार प्रशासन होगा या हम। किसानों ने उसको रास्ता दिया, लास्ट तक पहुंचाया, प्रशासन ने उसको वापसी हिला दिया। आपको मैं एक वीडियो दिखा देना चाहता हूँ, हमने इसको रिकॉर्ड की। देखो, ये जे कैमरा दिखा सके ता ये एम्बुलेंस है, और ये देखिए आप, एम्बुलेंस है तो ये उधर से गाड़ी मुड़ के आई। ये अंदर की तस्वीरें हैं, डबल बैरिकेड है। ये देखिए आप, डबल की बैरिकेड है। देखो, चिल्लाते रहे घर वाले भी, हम किसान भी, इसको जाने नहीं दिया गया। ये आपके सामने लाइव है, मैंने इसको रिकॉर्ड किया, रिक्वेस्ट करी, किसी किसान की जान बच सकती है, आप जाने दो। एम्बुलेंस को इन्होंने बिल्कुल रोक दिया, उसको नहीं जाने दिया। तो हम किसानों ने रास्ता दिया, इन्होंने नाइंसाफी करी। अब ऐसा कर दिया, चीन और कश्मीर में भी ऐसा नहीं होता। उस तरफ जवान खड़ा है, इस साइड उसका बाप खड़ा है। क्या वो जवान अपने बाप पे गोलियां चलाएगा? क्या वो जवान अपने बाप पे गोलियां चलाएगा? जब उसका पिताजी बाप दिल्ली की तरफ चलेगा, पैदल मार्च जब करेंगे तो जवान साथ में चलेगा। शांति से, प्यार से इन्होंने बहुत कोशिश करी आंदोलन को तोड़ने की, भड़काने की, लेकिन किसान हिलेगा नहीं। कानून हटेंगे, सरकारें हटेगी, तभी किसान हटेगा। इतने किसान नहीं हटेगा। ठीक है, बिल्कुल। सो ये लगातार ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੱਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿੱਲਾਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਕਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਆ? ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਇਹ सोच भी हो सकती है? देखिए, 1984 का कानून है कि आप जो है सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं कर सकते। इतनी सिक्योरिटी अगर आपके माध्यम डेली पोस्ट में आप सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकारी संपत्ति का नुकसान करा सरकार ने करा, हमने कोई हिंसा नहीं करी। इतनी सुरक्षा अगर गलवान घाटी में करते तो चाइना वहां गांव नहीं बसाता। चाइना ने वहां गांव के गांव बसा लिए। इस तरह की बैरिकेडिंग हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ो किसी भी बॉर्डर पे हमारे यहाँ नहीं है, वहाँ केवल फेंसिंग है। आप देखिए, कटेली तार जो है, इनके ऊपर जो है कानून है। बिल्कुल बिल्कुल, दिखाइए भाई जी। अगर आपने अपने खेत में इस तरह की कटीली तार लगाई और कोई पशु घायल होता है या उसकी जान जाती है तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। भारत सरकार खुद अपने बनाए हुए कानूनों को तोड़ रही है। 1984 में कानून बना था, इसेंशियल सर्विसेज में, इमरजेंसी सर्विसेज में एम्बुलेंस आती है। आप देखिए, यहाँ से वहां तक जो है कितना बड़ा बैरिकेडिंग कर रखी है, और कोई भी एक वाहन जाने की वो नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ सरकार को, किसी भी एम्बुलेंस में किसी भी मरीज को, और सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को हम कल फाइल करेंगे कि भाई अगर किसी भी एम्बुलेंस में कोई भी जान माल की हानि होती है तो भारत सरकार पे, नरेंद्र मोदी पे, अमित शाह गृह मंत्री पे 302 और 307 के मुकदमे दर्ज होंगे। जी, आप लोकल के बारे में आप पूछ रहे थे साथियों, हम लोकल हैं, हम हरियाणा से हैं, ये धरती हमारी है।
हम यहीं के हैं और हम आंदोलन कर रहे हैं, हमें कौन रोक देगा। और इन्होंने जो कोशिश करी तोड़ने के आंदोलन को, इन्होंने देखा रातों रात किस तरह से हम यहाँ उठ के आए हैं। 10 मिनट और 1 घंटे के अंदर लाखों लोग यहाँ पहुंच गए, क्योंकि हम यहीं के थे। एक फोन का कमाल है। एक फोन का कमाल है। एक फोन का कमाल है जी। और ये तो ट्रेलर है, अभी तो फिल्म तो बाकी है। अभी तो जो कंडेला गांव में मैं वहाँ पे कवरिंग कर रहा था, जो जितना खाप में जो यहाँ वहाँ पे रश था, एक सीएम की रैली में भी इतना रश नहीं होता भाई। हम जींद से हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंडेला गाँव है। कंडेला की वो धरती है, पहले वहाँ आंदोलन हुए थे, 9 किसान भाई हमारे गोलियों से मरे थे। जब भी बीजेपी के ऊपर सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी था उस टाइम भी, उस टाइम गोलियां चली थी, उस टाइम 9 किसान भाई मरे थे, लेकिन सरकार को हमने झुकाया था। ओम प्रकाश चौटाला सीएम ने उनको झुकाया था। आज वो राजनीतिक पे खत्म कर दिया, उसका कोई पार्टी नहीं। अब इसकी बारी है ਜੀ ਦਰਸ਼ੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋर्ट ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ बहुत कोई बड़ा बना रखा है। हम तो ऐसे बना दिए, बिल्कुल ही आगे हम है ही नहीं। हमारी धरती रही, हम ही नहीं, हमें चोर बना दिए। इस तो चोर सरकार किस तो होगी। ये बहन अपनी माँ का न बाण का न अपनी लुगाई ने छोटे पड़े, माँ कितने पड़ी हरियो, इसका आगे पीछे के हमारे 3 पीढ़ी है। ये हम राज करा, हमारे बाप रुकरन लाग रहे हैं और हमारे बालक करेंगे। हम आंदोलन जारी रखेंगे। ये 2024 तक का टाइम है। हम हर साल आड़े बैठे रहेंगे और सरकार नहीं झुका दिया तो हमारा भी नाम नहीं। और बिल्कुल सो जोश बहुत बड़ा। जी जी जी, लेकिन हम जो है आपदा में अवसर खोज लेते हैं। जैसे इन्होंने मिट्टी डाली और परमात्मा ने कल सुबह बारिश भी करी है। हमने इसमें घिया के, त्योरी के, खीरे के बीज डाल दिए हैं। इसमें जो है पूरी हरियाली हो जाएगी। हमारे गुरु के लंगर चलते रहेंगे। अच्छा अच्छा, सिट्टे बीज छोड़ते हैं, बीज छोड़ देंगे और बिल्कुल तैयारी हो रही है। हमने मेघा लिए 3 किलो बीज लग जाएंगे इतने उसमें। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲकुल। ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ? पहले ने पिछले 72 दिनों से हम यहीं पे हैं, तो हम अंदर लोगों को नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी बीजेपी का बंदा है। पीछे भी हम गए थे तो पीछे बीजेपी का बंदा अफवाह फैला रहे हैं वहाँ पे। तो अभी हमने वहाँ उसको से निकाल के बाहर करके आए हैं कि लोगों के अंदर ये कमेटी बना रखी, इसके अंदर अफवाह फैला रहे हैं लोगों के अंदर। तो ऐसे नहीं करने देंगे। हमारी ड्यूटी यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी रहती है हमारे अलग अलग टाइम पर बंदों की, कि कोई भी बीजेपी का बंदा अंदर घुस के कुछ भी कर सकता, पुलिस पर ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਲਾਉਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਬਾਰੀ ਬੰਨਣ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣ, 7-8 ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਤੇ ਇਹ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ।